नमस्कार साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसा आपको मालूम है, हिंदुस्तान में जिस प्रकार से आम जनमानस की, जिसमें आप और मैं हम सब शामिल हैं, उनकी कमर तोड़ दी गई मोदी जी और महंगाई के द्वारा, जिस प्रकार से नौकरियां गई, जिस प्रकार से किसान की किसानी छीन ली गई, जिस प्रकार से मजदूर को मनरेगा की मजदूरी भी नहीं मिल रही, जिस प्रकार से तनख्वाहों में कटौती की जा रही है, जिस प्रकार से बेरोजगारी और महंगाई उनका डंस आम जनमानस को डस चुका है, इनको लेकर माननीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने माननीय दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया। उन्होंने विस्तृत चर्चा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी से इस बारे में की, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से इस बारे में की और एक खाका तैयार किया। आज जनमानस की उस पीड़ा को उजागर करने के लिए कांग्रेस क्या करेगी और कैसे जनता के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ी हो जाएगी, उसकी विस्तृत चर्चा आपसे माननीय दिग्विजय सिंह जी और केसी वेणुगोपाल जी करेंगे। उस कमेटी के सब सम्मानित सदस्य और मेरे सहयोगी गण भी इस मंच पर मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और मैं बगैर किसी विलंब के अनुरोध करूंगा केसी वेणुगोपाल जी से और दिग्विजय सिंह जी से कि वो आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी। Good morning to everybody. The people of the country is undergoing a severe pain and miserable way of life due to the policies and actions of this Modi government. Especially for the last 2 years, we are witnessing a terrible price rise on petrol, diesel, LPG gases, edible oil, like the needy things for the poor people. Indian National Congress under the leadership of Sonia Gandhi and Rahul Gandhi is fighting against this bad policies of the Union government all over India. We have done so many demonstrations in front of Raj Bhavans, district collectorates, and even each and every petrol pump of the country. As Surjewala ji rightly pointed out, meanwhile, Honorable Congress President has constituted a committee under the leadership of our senior most leader Digvijay Singh ji to have a sustained agitational program to highlight the anti-poor policies of this government. They met several times. They have discussed with the senior leaders, and finally we put forward a plan of actions. Then Congress Working Committee, before Congress Working Committee, we placed that agitational program. CWC unanimously, with a little amendment, agreed for the program. That is why Congress Party already given direction to all PCCs and DCCs to go ahead with this program.
We have convened the General Secretaries and PCC Presidents meetings also to chalk out the details of this agitational program. You know that the prices of mustard and other edible oil have doubled in the last 1 year. Seasonal vegetable price have increased by 40-50% in a month itself. The cost of non-subsidized LPG cylinder has gone up by 50%. That is rupees 594 to rupees 900,000. Similarly, the petrol and diesel have gone up by rupees 34.38, rupees 69.59 to rupees 103.97, and rupees 24.38, 62.29 to 86.67 for diesel. On top of the back-breaking price rise and inflation, levels of unbearable unemployment and loss of jobs has made lives miserable to the common persons. 14 crore jobs were lost during the COVID period alone. Crores of daily wages and salaried class have faced up to 30% salary cut. Unemployment rate is still at time high of 8-9%. During 10 years of Congress government, pulled 27 crore Indians out of the poverty line. Over the last 2 years, Modi government has pushed back 23 crore fellow Indians below the poverty line. This is as per the latest report of Asim Premji University. The government periodic labor force survey has further highlighted the pitiable condition by pointing out that the farmers in India can earn on an average of rupees 27 per day, even below the Manrega wages. 22 out of 36 states and union territories has run out of Manrega funds, and an additional rupees 50,000 crores for budgeted outlay is needed, which Modi government is refusing to provide. All this is adding to the woes of the people. During the course of this, that is why we are planning a Jan Jagran Abhiyan from November 14, Panditji's birthday, to 29th November. Actually, this is a 15 days massive campaign all over the country. The party workers will reach out to maximum number of people all across the country and create awareness on the bad handling of economy by Modi government and the resulting price rise. Congress leaders and workers shall undertake a week-long Padayatra between 14 November and 29 November 2021 with 9 halts in the village, towns, cities of the mass contact area. Padayatra will begin every morning with a Prabhat Pheri from 6-7 am, followed by Sramadan, preferably in a weaker section neighborhood areas. Each Padayatri will wear a Gandhi cap for the purpose of identification. Instead of public meetings, small group meetings shall be held to communicate nuances of inflation, its adverse effects of everyday lives of the common people. Along with this, AICC training department is being organized for state level trainers from 12 to 15 November 2021 in Sevagram, Wardha, Maharashtra. There is a 4-day training camp all over India. Our delegates from different states are attending that training camp. Where is that? Wardha, Maharashtra.
from 12th to 15th. Beginning session. Wait for questions, please. Let Digvijay ji will tell you in detail. On one day, on 14th November, training would be exclusively imparted on the issues pertaining to the Jan Jagran Abhiyan. The state level trainers, in consultation with the respective Pradesh Congress committees, shall do a one-day training program at the Parliament, Assembly and sector, comprising of 5, 7, 10 booths, with the help of trainers from the above mentioned areas. For the Jan Jagran Abhiyan, AICC Social Media Department shall launch a social media campaign via press conference in Delhi on 12th November 2021. It is expected that all the participants of the Jan Jagran Abhiyan with the social media account shall post their activities on different social media platforms. AICC and PCC shall do live streaming of senior Congress leaders of the respective mass contact programs. AICC shall be issuing a toll-free number on which the participants of the Jan Jagran Abhiyan and those supporting it can register themselves through a missed call. Also, Congress membership drive is also we already launched from November 1st onwards. We expect all to register themselves to Congress members too. Those who are participating in this Abhiyan will get an opportunity to become the members of the Congress party also. AICC also launching the logo of Jan Jagran Abhiyan, recalling the famous Danti March and releasing pamphlet with facts about the price rise, its repercussions and questionnaire about people's prevailing predicament. National level, we have set up an 9-member control room in the AICC to monitor these agitations. The AICC control room will be monitoring the activities of the Jan Jagran Abhiyan in the states through the control room set up by the PCC in the respective states. As on today, we have fully functional control rooms in 28 states and 88 senior leaders are working in these control rooms. This is going to be one of the massive agitational program we are going to do. I think Parliament session is also going to start on 29th onwards. This pain of the common people due to the price rise will reflect the proceedings of the Parliament also. Thank you. थैंक यू सर. आई वुड नाउ रिक्वेस्ट श्री दिग्विजय सिंह जी कि वो आपको इस बारे में विस्तृत जानकारी देंगे. बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप जी, धन्यवाद वेणुगोपाल जी. आदरणीय साथियों, हमारी समिति के सभी सदस्यों की ओर से मैं माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभारी हूँ, CWC का आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की. और हम लोगों का ये उद्देश्य है, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है और जो गरीब और यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको अपने परिवार के बजट को बैलेंस करने में भी दिक्कत आ रही है. इस पूरे अभियान को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है. और पहले महंगाई का हम लोगों ने विषय लिया है, उसके बाद बेरोजगारी भी है, किसान की समस्याएं भी हैं, मजदूरों की समस्याएं भी हैं, अनेक और समस्याएं हैं, उनको भी इसी के माध्यम से हम लोग आगे लेते जाएंगे. मैं माननीय वेणुगोपाल जी का आभारी हूँ, AICC का आभारी हूँ, जिन्होंने हमारी इस पूरी समिति का पूरा सहयोग किया. और हमें विश्वास है कि आप
सभी के माध्यम से हम जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएंगे। माननीय वेणुगोपाल जी ने काफ़ी विस्तार से सारी बातें आपको बताई हैं। हाँ आप काफ़ी विस्तार से आपको सारी बातें बताई हैं। यदि किसी को प्रश्न पूछना हो तो मैं उत्तर दे दूंगा। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस किया कि हम लोगों के जितने भी ये आंदोलन होते हैं वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं। जिस प्रकार से जनमानस को इसमें शामिल होने की आवश्यकता है वो नहीं हो पाते हैं। इसलिए माननीय सोनिया गांधी जी ने सस्टेन्ड एजिटेशन प्रोग्राम के बारे में समिति बनाई थी और उसकी शुरुआत करने के लिए हमें ट्रेनर्स की आवश्यकता थी, स्वाभाविक है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में माननीय सचिन राव जी जो वर्धा में ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं उनसे संपर्क करने के बाद एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे जो स्टेट ट्रेनर्स होंगे उनको 14 नवंबर को वो एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें शामिल करने के लिए सारे नाम तय हो गए हैं और वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये ट्रेनर्स जो हैं हर पार्लियामेंट से 10 लोग, हर असेंबली से 10 लोग और हर सेक्टर से लगभग 20 लोगों की ट्रेनिंग एजुटेशनल प्रोग्राम को किस तरीके से जन जन तक पहुंचाना है उसके बारे में उनको दी जाएगी। उसके लिए पैम्फलेट तैयार किया गया है, जिस पैम्फलेट में हम लोगों ने जनमानस से महंगाई के बारे में प्रश्न पूछे हैं और उनका प्रश्नों का उत्तर भी उस पैम्फलेट की दूसरी तरफ हमने देने का प्रयास किया है। ये भी कहा गया है कि सभी माननीय कांग्रेस के लीडर्स 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में 7 दिन की पदयात्रा करें। ये जरूरी नहीं कि एक बार में ही लगातार 7 दिन में करें, 2-2, 3-3 दिन के बाद भी वो कर सकते हैं, लेकिन प्रयास इस प्रकार का करें कि वे इन 15 दिन में 7 दिन की पदयात्रा करें और रात को वहीं रुकें। पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगी, चर्चा होगी, ग्रुप मीटिंग्स होंगी और लोगों से एक जीवित जनसंपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। आजकल ज़माना सोशल मीडिया का भी है, नेट का भी है। हमारा AICC का जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पूरे देश में सोशल मीडिया का कांग्रेस पार्टी का ताना बाना निर्मित किया है। उसका उपयोग भी हमारे इस कैंपेन के लिए किया जाएगा और विस्तार से सोशल मीडिया कैंपेन हमारा क्या होगा, उसके लोगो क्या होगा, उसका टोल फ्री नंबर क्या होगा, ये 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करके आपको बताया जाएगा। थीम किस प्रकार से थीम सॉन्ग होंगे ये पूरा आपको 12 तारीख को बताया जाएगा। इसी के साथ साथ डेटा डिपार्टमेंट हमारा जो है AICC का, जितने लोग इसमें शामिल होंगे उनसे टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देने के लिए कहा जाएगा और मिस्ड कॉल आने पर उनके पास OTP भेजा जाएगा। उस OTP पर वो अपना रिप्लाई जैसे करेंगे तो उसको एक फॉर्म हम लोग बनाया है, वो भी आपको 12 तारीख को बता देंगे। उस पर वो फॉर्म भर के डिजिटली यहाँ पे ऑनलाइन भेज देंगे। डेटा डिपार्टमेंट के पास 2 तरह के लोगों की बात आएगी। एक तो जो लोग स्वयं शामिल हो रहे हैं इसके अंदर, दूसरा जो इसका शामिल तो नहीं हो लेकिन समर्थन करते हैं, उसको यहाँ कंपाइल किया जाएगा और कंपाइल करने के बाद उसकी सूचना प्रदेश कांग्रेस कमेटीज को दी जाएगी। जो अपने निचले स्तर पर ट्रेनर्स हैं, जिला कांग्रेस से ब्लॉक कांग्रेस हैं, उनको वेरिफिकेशन के लिए वो भेज दिए जाएंगे। साथ में ये भी है कि सोशल मीडिया डिपार्टमेंट जो है हमारे सीनियर लीडर्स के जो फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी
हम लोग इसमें प्रस्तावना हमने की है। तो इस प्रकार से कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर हमें जनमानस के बीच में जाने की आवश्यकता है। और हम लोग सीनियर लीडर्स से, जो स्टेट के लीडर्स हैं, उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो 7 दिन हर जिले में एक एक दिन का वो अगर पदयात्रा करें तो उससे एक पूरे प्रदेश में इस प्रकार का एक संपर्क भी स्थापित होता है और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी होता है। तो मूल रूप से एक मोटे तौर पर मैंने आपको इसका स्वरूप बताया है। कोई प्रश्न होंगे तो हम उत्तर देंगे। 15 दिन लगातार आपने कहा, जैसे केसी जी ने कहा कि मैसिव प्रदर्शन आपका रहेगा, बड़े पैमाने पर जन जागरण राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी कहीं शामिल होंगे इस पूरे जन जागरण यात्रा के दौरान? ये They will be the part of this agitation. कहाँ शामिल होंगे? That we will inform you. That we will inform you in the due course. Any other question? अन्य राजनीतिक दलों से भी आप बात करेंगे या सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही अभियान होगा solely पूरी तरह से? जैसे विपक्ष के और पार्टी This is Congress Party's agitational program, which has been discussed in the CWC and approved by the CWC. Sir, for Mr. Digvijay Singh, sir, you are doing from 6 to 7 o'clock in the morning, something very similar to what the RSS does in terms of. no, don't compare the two, for God's sake. So you also said that there would be the image would be related to Dandi March. Can you please elaborate on that? Pardon? You said Digvijay replied Dandi March. Yeah. Can you please elaborate? No, that is the logo. The logo depicts the Dandi March because Mahatma Gandhi led the Dandi March against the tax on salt, which hit every household. Similarly, increase in the prices of gas cylinders has hit every household. The inflation has hit every household. And it will be women-centric because when Mahatma Gandhi announced that he will take up a Dandi March on the issue of tax increase on salt, there were a lot of people who were very apprehensive of this idea. He said, don't worry, if you don't come, I don't mind, but women will join us. And you will be surprised that out of a total crowd of about 39,000 on the day when he reached Dandi for salt satyagraha, 19,000 were women. So this inflation agitation would be more of women-centric also. That is why we have in the logo included the Dandi March as one of the sort of indicators. Which are your key states? Is it Uttar Pradesh, election-going states, or is it just. All over throughout, India. throughout. All over India. Sir, basically this is to help up in membership. That is the whole idea. Just to revitalize. No, to fight for the common people. Why you are diluting it? It is a fight for the common people. That we are not decided so far. We will take a call on that. And the farmers are agitating, sir. They're saying they will do rallies every day to Parliament. Will Congress Party, because earlier you all gave some support, Mr. Digvijay said that you will publicly supporting this. This time. No, we are all totally publicly supporting farmers. Definitely. सर, इस मार्च के दौरान क्या केंद्रीय मुद्दों के ऊपर ही विरोध रहेगा कि राज्य स्तर के जो मुद्दे हैं ज्वलन जिससे जनता परेशान है उन्हें भी इस मार्च के दौरान उठाया जाएगा या सिर्फ नेशन वाइड इशू है? We are now focusing on price rise. Of course, this is Digvijay ji already pointed out that this will be the first among the issues, price rise. After that, we will go for unemployment. We will go for farmers issue. Like we will go. Thank you. Jainendra, please raise your hand if you want to ask question. जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उनमें भी किस तरह से आप लोग इस कार्यक्रम को चलाएंगे? और सवाल एक ये भी है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर बीजेपी सरकारों ने कम किया, आप लोगों की तरफ से बात No,
उत्तर प्रदेश भी चुनावी राज्य है, उत्तराखंड भी चुनावी राज्य है, not only Punjab. This is very clear. Yeah, I understood. Yeah, that's why I'm telling. Not only you told us Punjab is done because of the election going state. Uttar Pradesh is also going election. Uttarakhand is also going for election. This is not the Congress party has done very clearly. You can see that the VAT rate of petrol diesel is very much less in Chhattisgarh, as far as Chhattisgarh government is concerned. Punjab, you can see they reduced 10 rupees for petrol and 5 rupees for diesel. Now it is also become one of the reduced rate all over the country. As far as Rajasthan is concerned, they have reduced the VAT rate of 2 rupees in January itself. Now also, I think that party think that they will do something more to reduce the pain of the common people. That we are believing. Our stand is very clear, but this is not the responsibility of the state government. Government of India is totally responsible for entire episode. This price rise, LPG, petrol, diesel price rise is happening only because of the policies of the central government. Therefore, the central government has to reduce their excise duty. When UPA was in power, only 9 rupees. Now it is 33. Therefore, don't justify with these arguments. Therefore, our aim is very clear to ease the pain of the common people. कांग्रेस के जो बड़े नेता मार्च में या पद यात्रा में शामिल होंगे तो जो जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट में ही होंगे, जैसे दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की बजाय उत्तर प्रदेश भी जा सकते हैं, आजाद जी कश्मीर की बजाय मध्य प्रदेश में भी जाकर पद यात्रा करेंगे, ऐसा कुछ प्रोग्राम? इसमें राज्यों के नेताओं को अपने ही राज्य में पदयात्रा करनी है और यदि एआईसीसी डायरेक्शन देगी तो दूसरे राज्यों में लोग जा सकते हैं, लेकिन एआईसीसी के डायरेक्शन में सारा काम No, we already told our general secretaries and in charges, they should go their respective in charge states. All other senior leaders will be participating in their respective home states. This is what the. सर ये जो कार्यक्रम होगा वो एआईसीसी जारी करेगी या दिग्विजय सिंह जी आपकी कमेटी जारी करेगी और क्या इन नेताओं को व्यक्तिगत रूप से आप बताएंगे, G23 के नेताओं तक भी आप पहुंचेंगे, उनको भेजेंगे? Let me take that. अरुण जी, आपकी भावना के लिए धन्यवाद। मुझे मालूम है कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस संगठित, सम्मिलित, सशक्त रहे और क्योंकि एक सशक्त कांग्रेस ही देश के लिए ज़रूरी है। आपने शायद पूरी बात सुनी नहीं, या तो वेणुगोपाल जी की और दिग्विजय जी की, या शायद आपका ध्यान टेलीफोन में था, मैं देख रहा था उस समय, क्योंकि उन्होंने बाकायदा ये कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने ये कार्यक्रम अप्रूव किया है और कांग्रेस कार्य समिति हमारी हाईएस्ट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव द्वारा आदरणीय दिग्विजय जी और समिति के सम्मानित सदस्यों से व्यापक चर्चा के बाद ये कार्यक्रम जारी किया गया है और प्रेस विज्ञप्ति जो हिंदी और अंग्रेजी में हम आपको दे रहे हैं उसमें इसकी तफसील शामिल है। और जैनेंद्र जी, मैं केवल आपके सवाल में एक और जोड़ना चाहूँगा, शायद हम ये भूल जाते हैं सारे मित्र कि पेट्रोल और डीजल में 85% कंपोनेंट केंद्रीय एक्साइज का है। जब आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी बता रहे थे, मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, हालांकि शायद हम सैकड़ों बार ये बात बता चुके, कांग्रेस ने 2014 में जब सत्ता छोड़ी तो डीजल पर केंद्रीय एक्साइज शुल्क 3 रुपया 56 पैसे लीटर था। आज कम करने के बाद भी वो 28 रुपया प्रति लीटर है। तो अगर आप इसे 2014 के, और उस समय कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल थी, आज $80 प्रति बैरल है। अगर आप कांग्रेस के बराबर भी कर दें तो 24 रुपया लीटर तो डीजल कम हो जाएगा। पेट्रोल पर केंद्रीय कांग्रेस शुल्क, केंद्रीय एक्साइज शुल्क 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर था जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, और आज
कम करने के बावजूद भी वो लगभग 29 रुपया लीटर है। तो 21 रुपया लीटर पेट्रोल कम हो जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार के बराबर कर दें तो। जो प्रांतों का वैट है वो केवल 8 से 12% ही है पेट्रोल डीजल की कीमत का, इसलिए उसमें 50 पैसे 1 रुपया कम करने का बहुत ज्यादा 2-4 रुपये का अंतर हो सकता है। जिस दिन मोदी जी 23 लाख करोड़ की लूट जो वो 7 साल में कर चुके पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज की वसूली से, वो सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी और कांग्रेस की सरकार के बराबर कर देंगे, इस देश में पेट्रोल की कीमत 40 से 45 रुपया 50 रुपया लीटर और डीजल उससे 5 से 10 रुपया सस्ता हो जाएगा। यस मैम, सॉरी आई मिस दैट। आपने कहा कि ये सीरीज सस्टेन है, तो ये पहला प्राइस राइज का मुद्दा है, इसके और कौन-कौन से इश्यूज हैं और प्राइस राइज का जो मुद्दा सिलेक्ट किया गया, सो थोड़ा elaborate दिग्विजय जी will take that question because I have already, in fact, both of us, Venugopal ji and I both have conveyed. This is the first. We'll take up unemployment, the Kisan, the labor, and selling of assets. All that will be a part of this program. Okay. सर मेरा सवाल ये है कि राफाल को लेकर लगातार दस्तावेजी खुलासे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी खुलासा कर रही है, आप भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया कि 2007 से लेकर 2012 तक 62 करोड़ आज दिस प्रोग्राम की कमीशन ली गई है। किस तरीके से देखते हैं बीजेपी की इन आरोपों को? yesterday we have done मेरे साथी पवन खेड़ा जी ने तफसील से कल इस पूरे मामले को जनता के पटल पर रखा था, पर मैं संक्षिप्त में 3 लाइन आपको कहूंगा ताकि दिग्विजय जी की ये जो मौजूदा आज हमने बात की है उसे डाइल्यूट ना हो। नंबर 1, मोदी जी ये बता दें देश को कि उन्होंने राफेल में भ्रष्टाचार, नो ब्राइबरी, नो कमीशन, नो मिडलमैन की क्लॉज प्रधानमंत्री ने क्यों हटाई थी, वो भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की वायलेशन में। क्या वो किसी के भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट कर रहे थे? दूसरा, मोदी जी ये बता दें 3 अक्टूबर को बीजेपी के 2 केंद्रीय मंत्री सीबीआई को दरखास्त देते हैं, 18 अक्टूबर को कमीशन के सबूत सीबीआई को मिलते हैं और 23 अक्टूबर की रात को 1 बजे इस देश के इतिहास में पहली बार मोदी जी सीबीआई के प्रमुख को हटाते हैं। क्या इसलिए कि उसकी कहीं जांच होने वाली थी? और तीसरा और आखिरी सवाल का एक जवाब वो और दे दें। सारे सबूत आपके पास हैं, 2018 से आपके पास हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही है कि भैया चौकीदार चोर है, क्योंकि 526 करोड़ का जहाज आपने 1670 करोड़ में खरीदा है। जो जहाज हम 526 करोड़ में विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी खरीद रहे थे राफेल, वो आपने 1670 करोड़ रुपया विदाउट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी खरीदा। यानी देश के एक्सचेकर को 42,000 करोड़ का चूना लगा। ये 10, 20, 50, 60 करोड़ कमीशन का मामला नहीं है। किसने कमीशन खाया, किसने लिया, किसने दिया, ये तो मालूम है। लिया किसने सरकार में, तो उसका नाम तो जांच से ही पता चलेगा। जांच से क्यों भाग रहे हैं? धन्यवाद। We'll do it separately.